कि यू आर फ्रॉम दिस साइड एंड यू आर फ्रॉम दैट साइड, नाउ यू नेगोशिएट, उसमें बहुत अच्छा होता है, वो बहुत बढ़िया नेगोशिएशन का उसमें हो जाता है। 1 मिनट। हाँ, तो now I am talking the overall management issues related to negotiations. These are in the 5 slides, as you know, 1/5, and I suggest all of you, I suggested earlier, when you show any particular same at the top, and same theme, management issues, some people write continued, continued, continued. So एक तो है कि CO and TD लिखते हैं और डॉट 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 लेफ्ट को लिखना है, राइट को लिखना है, ऊपर लिखना है, नीचे लिखना है, नीचे राइट को लिखना है, या ऊपर लेफ्ट को लिखना है, या ऊपर राइट को लिखना है, नीचे लेफ्ट। इसके बारे में करेक्ट नॉलेज, व्हाट इज द राइट वे टू डू इट, 50% लोगों को तो क्लियरली नहीं मालूम है। जो कंटिन्यूड लिख देते हैं ना, एटलीस्ट 50% पढ़े लिखे लोगों को नहीं मालूम है कि कंटिन्यूड को किस तरह से और कहाँ पे लिखना है, लेफ्ट राइट ऊपर नीचे कहाँ लिखना है। वन थिंग, so my मतलब what I prefer is when you are presenting something which is like management issues 1/2/3/4, है ना, टाइटल टॉप का सेम है स्लाइड का, तो आपको मालूम है कि 5 स्लाइड के बाद में ये खत्म हो जाएगा, तो you can do this thing accordingly. You in your presentation, if you use this methodology, it helps you. Now, analytics, the use of business analytics for developing the alternatives and all your for preparing a preparing BATNA of the other party. इस सब के लिए आपको एनालिटिक्स की जरूरत होती है, बिजनेस इंटेलिजेंस की जरूरत होती है, एंड आफ्टर डूइंग द बिजनेस इंटेलिजेंस, द एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग, उस रिपोर्ट बनती है, डेटा मैनेजमेंट होता है, नॉलेज मैनेजमेंट होता है, एंड देन यू आर इन अ गुड पोजिशन टू do all that thing. Then customer management, customer lifetime value and customer retention. जो यहाँ पे हम बात करते हैं, who is the customer? You are in a company which has got 5,000 patents, out of which you don't license 10 patents which you are currently using internationally, but other 4,990 patents you are willing to give license for. Now this is your portfolio which you are willing to share with others. Now, who are the other customers? How many patents they have taken from you earlier? At what terms? Are they maintaining good relationship with you or not? So all these things, are they buying things from the competing companies? Are they getting some licenses from the competing companies? And if they're getting the license from the competing company, which are those companies? The A to Z, every information is to be taken note of and made available when you're talking of the customer management information. Then financial management, regulatory compliance. Are there any regulatory compliances? Like in India, we have got a Competition Commission of India. So whether the country has a competition commission, in USA they call this kind of a thing as a क्या बोलते हैं उसको, एंटी ट्रस्ट लॉज, जो यहाँ पे मोनोपोलीज के ऊपर है, इस तरह से वहाँ पे बोलते हैं शर्मन एक्ट, और इस तरह से 3-4 एक्ट्स हैं. These are the equivalent to Competition Commission of India. So these are the in different countries they've got different kinds of the laws which are against creating monopolies. Okay, all countries want that monopoly should not be created in their country. So there are some regulatory compliances. Then financial services, anti-money laundering. So many people in India are stuck up in the money laundering cases. The Directorate of Enforcement is, they have the powers ki, money laundering is not allowed in any country. And still people think that ये किसी को मालूम नहीं पड़ेगा क्या है, इतना तो चलता है, ये तो कोई ज़्यादा बात नहीं है.
मनी लॉन्ड्रिंग होता है। तो अगर है कि आप मनी लॉन्ड्रिंग में आपने $100 का मनी लॉन्ड्रिंग किया, विच इज़ नॉट रियली मनी लॉन्ड्रिंग, इट इज़ आपने किसी को डॉलर दे दिया, पैसे ले लिए, वो कर दिया, छोटी मोटी चीज़ें हैं। पर आपने कहा कि हमने ना $5 लाख का मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं, तो आप सस्पिशन के घेरे में आ जाएंगे। कहीं से किसी को लीड मिलता है, पुलिस को, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को, ईडी के जो ऑफिसर्स हैं उनको कहीं से उनकी जो कहीं पर उनका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, उस इन्वेस्टिगेशन में उनको लगा ये कहाँ से आया, तो वहाँ पे उनको लगा कि आपको कोई डाउट हुआ, तो आपके अकाउंट को चेक किया तो मालूम पड़ा कि आप भी कर रहे थे मनी लॉन्ड्रिंग। तो इस तरह के जो है बैंक सेल 2 नॉर्म्स हैं बैंकिंग के फॉर कंप्लायंसेस। फ्रॉड डिटेक्शन के अपना सिस्टम होते हैं, इवन सॉफ्टवेयर आर देयर फॉर फ्रॉड डिटेक्शन। आज की डेट में सारे बैंक अकाउंट्स, अब से 15-20 साल पहले जो बैंक अकाउंट थे, दे वर नॉट लिंक्ड टू एनीथिंग, बट नाउ ऑल बैंक अकाउंट्स आर लिंक्ड टू योर पैन एंड पैन, आधार, हर चीज़ से आपके सारे अकाउंट्स लिंक्ड हैं। तो आपने क्या ट्रांजेक्शन किया, कितने का किया, क्या, वो इट इज़ नॉट ओनली बैंक, जो गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं, दे कैन सोर्स एनी इंफॉर्मेशन एनी टाइम। तो जो क्रिमिनल्स जो कर रहे हैं, फाइनेंशियल क्रिमिनल्स हैं, दे कैन बी इजीली स्पॉटेड। और आज की डेट में जो इतने सारे जो बड़े जो इस तरह के मनी लॉन्ड्रिंग और इस तरह की जो चीज़ें चल रही हैं, ये उन लोगों की हैं जो कि पहले कोई पकड़े नहीं जाते थे, एंड दे बिकेम सो बोल्ड कि कैसे इनको मालूम पड़े, कैसे पकड़े जाएँ, कुछ नहीं होगा, और वो सब पकड़े जा रहे हैं धीरे-धीरे करके। देन पब्लिक सेफ्टी इश्यूज़ आर देयर। व्हेन यू डू समथिंग, आपने कोई पेटेंट है आपका, वेदर पब्लिक सेफ्टी है या नहीं उससे, या कि सपोज समबडी टेक्स द लाइसेंस, मेक्स द प्रोडक्ट, और उसमें वो कहते हैं कि तो ब्लास्ट हो गया, तो जैसे ऑफ कोर्स आई एम नॉट गिविंग ए करेक्ट एग्जांपल, इफ ऐसे चेरनोबिल वाला या जो भोपाल गैस ट्रेजेडी वाला था, इसका यूनियन कार्बाइड का, दे आर नॉट द एग्जांपल्स ऑफ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर बेस्ड ट्रेजेडीज, बट इस तरह से अगर आपके टेक्नोलॉजी से प्रोडक्शन करते समय कुछ ब्लास्ट होता है, तो पब्लिक सेफ्टी इज एट रिस्क, और उसके लिए आपने जो लाइसेंस दिया, तो यू विल बी इक्वली रेस्पॉन्सिबल फॉर इट। जिसने लाइसेंस लिया वो कहता है भाई मुझे क्या मालूम था कि ऐसे ब्लास्ट कर जाएगा, जैसे ब्लास्ट हो गया, इसमें 500 लोगों की डेथ हो गई, मर गए। तो ये जो हुआ है, तो these public safety issues are also very important, and government is very alert about it. You have to have, the public education is there, public knowledge is there, public awareness is there, and you have to be also very clear on the issues. And similarly, the health and life sciences, healthcare payer हैं आप, या हेल्थ केयर प्रोवाइडर हैं, मैक्स हॉस्पिटल, फोर्टिस हॉस्पिटल, और इतने हॉस्पिटल्स हैं जो कि हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं। वी पे फॉर आवर हेल्थ केयर, लाइक इन टर्म्स ऑफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं हम सब लोग। एंड इस तरह से फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी बनाती है, डॉक्टर्स को प्रेस्क्राइब करता है, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव डॉक्टर्स को कन्विंस करता है, डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब किया, मुझे उस चीज़ से रिएक्शन हो गया, तो मैं क्या करूँगा? व्हाट आर द ऑल्टरनेटिव्स आई गॉट एज ए हेल्थ केयर इंश्योरेंस, हेल्थ केयर पेयर? आई विल sue the डॉक्टर, हॉस्पिटल एंड द फार्मास्यूटिकल कंपनी, ऑल ऑफ देम, कि इन्होंने ये दवाई बनाई विच वाज नॉट करेक्ट, विच वाज नॉट गुड, एंड मुझे इससे ये प्रॉब्लम हो गया। ओके, so all these issues become leadership and management. Information technology management is important for the companies, because the information technology you have, IT is important for financial management, IT is important for marketing management, IT is important for HR management. For information technology management is very important in all functional areas. When you join the corporate, you'll understand even how IT is important in the HR, human resources. आप सोचते हैं कि सिलेक्शन प्रोसीजर होता है, रिक्रूटमेंट, प्रमोशन, यही काम होता है HR का, बट इसमें बहुत एनालिटिक्स होता है। एंड व्हेन यू गो फॉर द टॉप पोजीशन,
They give you the option of the, you become a partner of a company after achieving, after getting about 8 promotions, you reach a level when you are known as a partner. So जो equity मिलती है आपको, all these things become part of it. So it is activities management, balance scorecard, human capital management, key performance indicators, then process management. All the issues are there which are related to performance in HR, human resources management. These are all important issues. Risk management and financial management. Credit risk is there. Like credit has been taken by a company, but how do you repay the credit? And when we say that as entrepreneurs you will be successful, but what if you become an entrepreneur and within 3 months when you started your production, last year lockdown came, this year bad luck, है ना? अब कोरोना आ जाएगा और इंडिया में 3 महीने का लॉकडाउन हो जाएगा और 3 महीने तक आपका कंपनी बंद पड़ी रहेगी, नई नई कंपनी है और आपको सबको सैलरी देनी पड़ रही है, तो जो लॉस हो गया आपने प्रोजेक्ट किया था, हमें 10 करोड़ का प्रॉफिट हो गया पहले साल में और आपको है कि ऑलरेडी 5 करोड़ का लॉस हो गया। अब जो बाकी बचे साल में आपको जो धीरे-धीरे you are coming to that level and then you are having 4 crore rupees. So net loss is 1 crore rupees. So net loss because of coronavirus or all the things, net loss 1 crore. जो कि प्रोजेक्ट का 10 करोड़ का प्रॉफिट। So these all issues are important. ये हम डिस्कस कर चुके हैं। ये डिस्कस manufacturing, process management, Six Sigma. You know about Six Sigma. I think those are the mechanical engineering and industrial engineering would know about Six Sigma. Yes, sir. Then supply chain management issues are there. Then warranties, guarantees, all these things are important. Merchandise, marketing, and operational management. All these are the management issues which are related to directly or indirectly with your negotiations in technology transfer. In case of patent, it is a trademark negotiation. Like Coca-Cola bought 4 trademarks of Parle Agro, that is Thumbs Up, Gold Spot, and Limca. So the negotiation went on. They said ki Coca-Cola ki we can pay this much. They said we want this much minimum. Then they negotiated, and I think if I remember correctly, it was a $60 million at which the 3 trademarks were sold by Parle Agro to Coca-Cola. If I remember correctly, $60 million. You can Google में सब सर्च करोगे मिल जाएगा. Coca-Cola's purchase of Thumbs Up etc. वो 5 मिनट में सब सर्च करने में मिल जाएगा. So these are all the issues. ट्रेडमार्क में भी होगा. अब डिज़ाइन कैसे लाइसेंस लें, डिज़ाइन उस डिज़ाइन के प्रोडक्ट बनाने का, उसमें भी इम्पोर्टेंट होगा. और मेनली तो पेटेंट, डिज़ाइन, ट्रेडमार्क ये इम्पोर्टेंट होता है. कॉर्पोरेट में जो इस तरह का नेगोशिएशन होता है कम होता है, बहुत कम होता है. कॉर्पोरेट इश्यूज जो होते हैं उनमें कॉर्पोरेट में बहुत कम नेगोशिएशन होते हैं इस तरह के. ये हो सकता है कि फुल कोई यू हैव रिटन ए नॉवल, और वो चेतन भगत ने लिखा कि 5 पॉइंट जो भी उसका पहला वाला नॉवल, वो 3 इडियट्स मूवी बनी, अब उसमें उसका नाम नहीं दिया. उसने कहा कि मुझे एक्नॉलेज तो करो, कम से कम पैसे मत दो, एक्नॉलेज तो करो मुझे कि ये यहाँ से आपने ये बेसिक क्यों उठाया है. तो पहले कि उसमें है कि फाइनेंशियल नेगोशिएशन, कमर्शियल नेगोशिएशन बहुत कम होते हैं कंपैरेटिवली. होते हैं बट रिलेटिवली लेस. कोई फिल्म है वो तमिल फिल्म में बहुत सक्सेसफुल हो गई, या बंगला में बहुत सक्सेसफुल हो गई, उसका आप हिंदी वर्जन निकालते हैं बॉलीवुड में, तो हिंदी में बनाएंगे तो उसको आप उसका रीमेक बना रहे हैं हिंदी लैंग्वेज में. आपके हीरो हीरोइन अलग हैं, कॉमेडियन अलग है, गाने अलग हैं, जो लिरिस्ट अलग हैं, सिंगर्स अलग हैं, म्यूज़िक डायरेक्टर अलग है.
तो बेसिक थीम जो है वहां से आप ले रहे हैं, तो बोलते हैं अडॉप्टेशन इन हिंदी लैंग्वेज। तो उसके लिए आप अडॉप्टेशन के लिए राइट्स ले रहे हैं, तो राइट्स में आपको नेगोशिएट करना पड़ रहा है उससे। But these negotiations are far less than the technology transfer negotiation agreements, followed by ट्रेडमार्क एंड डिजाइन। ट्रेडमार्क का इतना फ्रीक्वेंसी कम होती है, ट्रेडमार्क नेगोशिएशन जो होते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी कम होती है। जो कंपनी चीज जो बना रही है अपना ट्रेडमार्क खुद ही रखते हैं वो सब लोग, तो ट्रेडमार्क को बेचना का काम कम होता है। बट हाईएस्ट इज द पेटेंट फॉर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एग्रीमेंट followed by designs. So I think with this I end today's session. If you have anything, please ask me. Sir, some students are having some queries regarding term paper 2. So अच्छा, ये बंद कर दूं स्लाइड में, ये वाला बंद कर दूं, क्लोज करूं? Yes, sir. ओके, हाँ बताओ, टर्म पेपर So, 2। हाँ बताओ yes, क्या? sir. So, good afternoon, sir. Sir, Good this is Guy. afternoon. हाँ, So, term paper 2, I have two questions. One is registration, like different heads, we need to put our details about the GIs which we have taken, the 10 GIs. One of the heads is registration. Sir, I did my everything, like it's almost done, the term paper, but this registration column is still blank because I'm still confused where to get this registration and what is it. Is it a registration number? If it is a 3-digit registration number, or it's a alphanumeric set of thing given, a code given to that particular GI, and where will I get? So please help me on this. Second one is about logo. Like one of my GIs is Kota Doria logo. So whatever information is available even on the IPN site, that is about the Kota Doria product itself, Kota Doria, the textile or fabric, but not about the logo. So will I speak about उसका देखा जो लोगो बनता है ना, हाँ जो सर, लोग लाइक एक इंस्टीट्यूट है NIT, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन, जो अहमदाबाद में है, वो लोगो मतलब जितने इंडिया के जितने मेजर कंपनीज हैं, जो मेजर लोगोज उन्हीं के बनाए हुए हैं इंडिया में। So that was the only had expertise in such logo making, and also the students are doing a 4-year program in design from that institution. Of course, NIFT came much later, and NIFT में भी होता है वो डिजाइन का, पर NIFT में फैशन का काम ज्यादा है, डिजाइन का काम कम है। वो तो इंस्टीट्यूट डिजाइन का है सारा। तो वो जो है लोगोज हैं, जो लोगों के पीछे जो प्रोडक्ट का जो बता रहे हैं ना, प्रोडक्ट डिटेल्स कोटा डोरिया का, तो वो डिटेल्स को एक्सप्लेन करके लिखो कि इसका लोगो ऐसा बना, ये वो है, जो भी कुछ व्हाट एवर बेस्ट यू कैन हैव, है ना? yes sir, तो right sir, इसमें है कि देखो, गिवन जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल टू यू, सेम इंफॉर्मेशन अवेलेबल टू मी। मेरे पास में कोई प्रिविलेज ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं किसी के ऊपर भी, तो उसके ऊपर व्हाट एवर बेस्ट यू कैन डू, एक्सप्लेन दिस थिंग, कोटा डोरिया क्यों है, इसमें कोटा में जो होता है ना, तो उसके कर दो, उसके कि इसका कुछ लिंक करो कि इनका जो लोगो है इसके ऊपर अपना रिसर्च करके बताओ कि भाई इसमें इस तरह का लोगो है। yes sir, लोगो का एक वो करो कि हाउ गुड और हाउ बैड you know the logo is, could it be better than this or could it be worse than this, whatever it is. You can work out this particular aspect. राइट सर। सो और वो पहले वाला रजिस्ट्रेशन वाला सर अच्छा देखो, उसमें जो है देखो सुनो, जो सीरियल नंबर होता है वो एप्लीकेशन नंबर होता है हमेशा, जो सीरियल एप्लीकेशन नंबर जो होता है ना, जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, जब जिसको उसको आप कहते हैं कि एनीबॉडी कैन अपोज फॉर दिस प्रेस्क्राइब्ड ड्यूरेशन, और वो अपोज करने का जो ड्यूरेशन खत्म होता है, किसी ने अपोज नहीं किया तो उसको फिर विद इन ए वीक और 2 वीक्स और 3 वीक्स, अगर छुट्टियां ज्यादा पड़ गई बीच में तो 2-3 वीक्स में उसका जो ऑफिशियल कार्रवाई होती है ना, कि वो जो कंसर्न पर्सन है वो उस पर नोट लिखता है, नोट शीट के ऊपर कि भाई इसमें है कि देयर इज नो अबॉर्शन फाउंड एंड दिस वाज ऑलरेडी एग्जामिन्ड एंड नाउ वी कैन डू इट। उसका ऊपर वाला अपना उसके ऊपर नीचे साइन करके उस आगे वाले ऊपर वाले को भेजता है, ऊपर वाला और ऊपर वाले को भेजता है, वो और ऊपर भेजता है,
वो जॉइंट कंट्रोल के पास जाता है, फिर वो कंट्रोल जनरल के पास जाता है, कंट्रोल जनरल उसको साइन कर देता है अप्रूव, उसके बाद में वो उसके नीचे वाले के पास जाता है, वो साइन कर देता है, फिर नीचे वाले को मार्क करता है, वो साइन करता है, नीचे वाले को मार्क करता है, फिर वो अंडर सेक्रेटरी लेवल के आदमी के पास आ जाता है, वो उसको फिर उसका सर्टिफिकेट बनाते हैं, उसको वो कर देते हैं कि रजिस्टर में लिख देते हैं उसको। इन सारे प्रोसेस में जो 5 और 5 10 सिग्नेचर का टाइम होता है, इसमें उनको 2 वीक से 1 मंथ तक लग जाता है, क्यों फाइल के तरीके से चलती है। अभी तक हमारे यहाँ उतना इलेक्ट्रॉनिक्स फाइलिंग सिस्टम नहीं है। अच्छा, फिर ये भी होता है कि somebody is on leave at some time, तो उसके यहाँ पे वो कहीं पर तो है कि एक दिन में 2 जगह फाइल मूव कर गई, कहीं पर है कि 4 दिन तक फाइल मूव नहीं की, 4 दिन की छुट्टी पे था, आदमी एलटीसी चले गया, कोई आदमी को कोविड हो गया, किसी को कुछ और बीमारी हो गई, तो किसी ने छुट्टी ली रखी है, तो उसका काम भी ठीक है, वो 2-4-5 दिन में आ जाएगा, वो ही कर लेगा इसको। दूसरा आदमी वो सारी चीज़ समझेगा, और इट इज़ नॉट ए मैटर ऑफ सच ए हाई प्रायोरिटी, अगर 1 हफ्ते बाद में हो जाएगा क्या फर्क पड़ जाएगा। तो इस तरह से है कि एक आध महीने में उसका जब जिस डेट को, अब मान लीजिए कि वहाँ पे रजिस्ट्रेशन में आपका पहले उसका नो ऑब्जेक्शन से पहले हो गया, पर हर वहाँ पे जो भी लोग काम कर रहे हैं एग्जामिन करके, तो जो आदमी छुट्टी पे नहीं गया हुआ है, उसके पास जो फाइल थी उसका बाद में डेट आया था, पर उसका उसने इमीडिएटली करके भेज दिया, उसका एक्चुअल जो रजिस्ट्रेशन नंबर पहले हो जाएगा। और जो आदमी 5 दिन की 10 दिन की छुट्टी चले गया था किसी बीमारी से या कुछ और वजह से, उसका वो 15 दिन डिले हो गया, तो उसका रजिस्ट्रेशन नंबर है वो बाद में आएगा। तो जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो करीब अपने कितने 300 के करीब रजिस्टर हो चुके हैं, और करीब 150 करीब हैं जो पाइपलाइन में है, जिनकी एप्लीकेशन प्रोसेसिंग वगैरह में चल रही है। ठीक है, तो इट इज द एक्चुअल रजिस्ट्रेशन नंबर which is a serial order number, which is as per the date on which it has been entered in the register of GIs. तो GI के रजिस्टर में जो नंबर है, that is a registration number, that is a serial order 1 2 3 4 5, जो कि 300 समथिंग इस समय जितना भी है। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन हो कि जो डाउट हो तो बताओ। नहीं सर, और बहुत सारों पे कोई भी ऑब्जेक्शंस रेज नहीं किया गया, जैसे आप हम लोग को टर्म पेपर में लिखना है इफ एनी ऑब्जेक्शंस। हाँ, तो नो ऑब्जेक्शन रेज। राइट सर, ठीक सर, थैंक यू। आप उसमें क्या कर सकते हो, आप जो 3 साल पहले हो गए ऑब्जेक्शन नहीं था, तो आप क्या कर लोगे उसमें? व्हाट इज इन योर हैंड्स, ऑब्जेक्शन आप कर देंगे उसका कि हमें टर्म पेपर लिखना है। ऐसे तो अभी तो कुछ नहीं कर सकते ना उसमें हम। तो जो से यू हैव टू राइट द फैक्ट्स, इट इज सो दैट एवरीबॉडी नोज एंड कैन अंडरस्टैंड। आपने 10 का प्रेजेंटेशन किया, उसको आपने 10 घंटा 15 घंटा लगाया, सारे को करके लिखा, उस चीज को दूसरे ने 10 मिनट में सुन लिया, समझ लिया, उसका नॉलेज बेस बढ़ गया। तो ऐसे जो और 30 टर्म पेपर लिखे गए हैं, आपने 10-10 5-5 मिनट में उन सबको सुन लिया, तो आपका नॉलेज बेस बढ़ गया ना इसके ऊपर। यस सर। तो ये पर्पस यही है कि सबका नॉलेज बेस जीआई के ऊपर इतना बढ़ जाए कि जब आप अपने, तो क्या होता है कि आप पढ़े लिखे आदमी हो, आपसे क्यों बात करता है, आप कहते हो मैंने एक आईपीआर कोर्स किया था, तो ये बात आ जाती है कि दार्जिलिंग टी, तो आपको तो जीआई, वो क्या जीआई क्या होता है, तो आप कहते हो कि वो ये जो होती है शैम्पेन, वो भी जीआई होती है, क्या होता है, तो आप उसमें फट से 10 नाम गिना दोगे, ये चीज़ें हैं, तो कोई और नहीं बना सकता, ये हो सकता है। आपका नॉलेज बढ़ना चाहिए ना। अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव इन दिस इस तरह कोर्सेज में होता है, टर्म पेपर का पर्टिकुलरली, कि आपके टू एनहांस एनरिच द नॉलेज बेस ऑफ ईच एंड एवरी स्टूडेंट। ठीक है ना। इनमें से कुछ क्वेश्चन जो है फाइनल एग्जाम जो है उसका कुछ पार्ट हो सकता है कि 40 में से कुछ को डिपेंड करता है कि क्या सिचुएशन है उस समय, हो सकता है कुछ एमसीक्यूज में डालने हैं। ठीक है ना सर। एमसीक्यूज के साथ मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि कभी कभी क्वेश्चंस मतलब सही होते हुए भी, क्योंकि वो टेक्निकली कुछ ऐसा हो जाता है कि हमारे ऑप्शंस ऊपर नीचे हो जाते हैं और उसमें हम लूज कर जाते हैं, पता नहीं, बट दिस इज व्हाट आई फील। यू आर राइट। इसमें अगर सम स्टूडेंट्स सिंडिकेट बना के करते हैं तो ज़्यादा स्कोर कर लेते हैं, और जो सिंडिकेट बना के नहीं करते हैं, इंडिविजुअली करते हैं, मे बी दे हैव मोर नॉलेज, बट ये भी सिस्टम का फॉल्ट है। अभी हमने आईआईटी में कुछ कंपनीज हैं जो कि
जो ऑनलाइन एग्जाम लेती हैं वो 100% फुल प्रूफ एग्जाम लेती हैं। उसमें जो हम आईआईटी के जो स्मार्ट स्टूडेंट्स हैं उनकी स्मार्टनेस वहाँ काम नहीं करती है, बट वी हैव नॉट एंगेज दोज एजेंसीज इन IITs फॉर कंडक्टिंग आवर ऑनलाइन एग्जामिनेशन। उनका टोटली 100% सिस्टम फुल प्रूफ सिस्टम है। ऑनलाइन एग्जामिनेशन इज एज गुड एज द ऑफलाइन एग्जामिनेशन, इफ नॉट एज गुड एज, एटलीस्ट सब्सटेंशियली। तो 95% उनका मतलब फुल प्रूफ है, 95%, 98% फुल प्रूफ है। हमारे यहाँ 0% फुल प्रूफ है जो हम फॉलो कर रहे हैं समय। राइट सर। सर जैसे कुछ कोर्सेज में हमें पेपर्स क्वेश्चंस दे दिए जाते हैं और 1-2 दिन के लिए हमें समय दिया जाता है, हम उसे मतलब ऑफलाइन आराम से करते हैं और सबमिट कर देते हैं। तो जहाँ पे नंबर कम होता है ना, जब 5-10 का नंबर होगा 10-15 का मार्क कर सकते हो। जहाँ पे इसका नंबर ज्यादा होता है ना, वहाँ पे नहीं कर सकते, और इस तरह की उसमें नहीं, थोड़ा मुश्किल होता है। राइट सर, है ना? यस, थैंक यू। ठीक है, चलो लेट मी सी, लेट मी थिंक, लेट अस सी, अगर ट्राई करते हैं सर उससे ये सर जैसे एक उसका सबसे बड़ा आर्ग्यूमेंट ये है, मतलब जो शायद एज अ प्रोफेसर आप बोलेंगे कि हम चीटिंग करेंगे, और ठीक है चीटिंग करेंगे, बट वही क्वेश्चंस, ठीक है आपने ABCD हमें टॉपिक्स दिए, तो हम चीटिंग नहीं करेंगे तो हम उसी को रट के लिखेंगे, और एक में हम चीटिंग करेंगे तो, बट हमें रटने के लिए प्रॉम्प्ट करने की जरूरत क्या, हमें कोई चीज रटने की क्यों जरूरत है? वो एक तरह से टेंशन, अगर हम चीटिंग भी कर रहे हैं तो मतलब आई जस्ट डोंट नो, मैं चीटिंग को लेजिटिमेट नहीं बता रही हूँ, लेकिन उस चीज को रटने का मैं क्यों 20 पन्ने बैठ के रटूं सर? हाँ ठीक बात है। तो आई जस्ट डोंट नो, बट ये मेरे मन में आता है, ऐसा आता है। थैंक यू। वैलिड पॉइंट है। ठीक है, चलो आई थिंक अब जनवरी से तो, but you will be, you know, completing your coursework by that time, but I think जनवरी से I hope पॉजिटिव थिंकिंग अगर रखते हैं हम तो जनवरी से सब सिस्टम चालू हो जाएगा एज शेड्यूल। ये सर हाँ, हम लोग को भी ऐसा ही लगता है। यहाँ पे क्या है कि जो बाकी जो जगह होती है ना, वहाँ पर दे हैव स्टार्टेड कॉलिंग, दिल्ली यूनिवर्सिटी में दे हैव स्टार्टेड कॉलिंग देम कि 50% बिठाओ क्लास में ऑल्टरनेट सीट पर, उस तरह से कर रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग डे स्कॉलर्स होते हैं, अपने घर से आते हैं, शाम को वापस चले जाते हैं। IIT में 90% लोग हॉस्टल्स में रहते हैं, तो ये थोड़ा सा इश्यूज हैं यहाँ पर, है ना? सर पर हाँ, पर अब फील होता है कि कहीं वी आर मिसिंग आउट समथिंग, जो सामने सामने होता है या जो कन्वेंशनल क्लासेस में जिस तरह होता है उस तरह वी आर मिसिंग आउट, अब फील होता है वो चीजें। इमेजिन जो 7th 8th 9th 10th 11th 12th में बच्चे हैं, उनको क्या होता है उनके साथ में? तो और वो लोग, कई लोग तो इतने खुश होते हैं सर, जो मेरे घर में बाकी इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं या जो जैसे भाई के बच्चे या वो, दे आर सो हैप्पी, दे हैव टॉप्ड एवरीथिंग, लाइक आई एम टॉकिंग ऑफ माय ब्रदर्स, but he has stopped everything and he is so happy about it. तो it's a good point also, ठीक है, बट कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, उसके बाद चीट करके लिखते हैं वो ठीक है, लेकिन समझ में तो आ जाना चाहिए कि व्हेन वी गो आउट इन द ओपन सीज और हम एकदम खुली दुनिया में जाए तो हमें पता तो होना चाहिए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको आना तो चाहिए। मार्क्स और नो मार्क्स इज सेपरेट इशू, बट आपको सब्जेक्ट अगर मैं पढ़ा है तो आना चाहिए, और अगर मार्क्स ज़्यादा है तो आपको उतना आना चाहिए कि यू शुड एबल टू जस्टिफाई इट एज फेयर। बहुत जरूरी है। ठीक है, चलो वी क्लोज टुडेज क्लास। यस, चलो ओके देन, Thank you, sir. सर, थैंक यू, बाय।